Ambassador, Mr. Prem Kumar on screen. Prem sir, screen is yours. Welcome, sir. Good morning, Hariprasad ji. My voice is clear. Can you hear me clearly? Yes, sir. Perfectly clear. Perfect. Thank you for the wonderful introduction. And as I always feel, it's very special to have Hariprasad ji as my host. It's like, when you're batting in cricket, it's very important to have a good partner in the non-strike. So it's otherwise you will be run out. So having a good partnership in cricket is very important. Same way, having a fantastic host is also very important. And when it is Hariprasad, तब तो मुझे 100% confidence है कि I can go on the stage or come on the screen confidently because he is going to set the stage on fire. Thank you very much, Hariprasad ji. So how are you feeling this morning? Welcome, sir. Thank you. How are you feeling this morning? Superb, sir. Superb. I couldn't sleep yesterday because I'm getting out this opportunity to host this event. Okay, अच्छा, ठीक है. और सुबह का morning, I think you were also part of our Project 1K. Sir. Yes. Okay, fantastic. So good. So how is Mangalore and how is the weather there? Superb, sir. It was a little cold here. First time maybe in the century, we are experiencing cold weather in Mangalore. Mangalore. That's what I was also feeling because it's basically because of lesser pollution, lesser vehicles, and the nature is it's giving its original feel once again. Yes, sir. Fantastic. Thank you, Hariprasad ji. Thank you very much. So, dear friends, good morning. All of you, come to the chat box and share your love. Where are you from and how are you feeling and what is the weather report in your place? Good morning, everybody. Good morning, warriors. And I can see 400 people almost. We have 398 and it's getting added up. बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग कहाँ से हो और कैसे हो मेरे प्यारे team members? Good morning. Right. Please type your messages and pour in some love and some energy this morning because we need a lot of energy to move in life. Okay. Wow. Fantastic. I can see the chat box is bombarded with messages. अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है. Very good. और एवरी थर्सडे हम लोग मिलते थे और इस बार फ्राइडे रखा गया क्योंकि वी हैव द आरटीपी ऑन थर्सडे इसके वजह से. सो आई थिंक otherwise it's usually on a Thursday morning to meet all of you. और जैसे आप लोगों को पता है we are going through a series webathon session season 3 जिसके अंदर we are discussing 13 vital subjects. I think we have already covered 7 weeks and this is our 8th week. And today we have yet another very, very powerful subject to be discussed. मैं बहुत excited हूँ. Thank you for the messages. मैं सभी messages यहाँ पर देख पा रहा हूँ. I'm not able to read the message for you read it out. But हम अच्छे हैं sir. अच्छा, very good. किसी का बीच में ऐसे आ गया था. Okay. So very fantastic to see all of you lovely people today morning. As Hariprasad ji was telling, this is a learning, and I would say मैं तो कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा learning मेरा यहाँ पर हो रहा है क्योंकि जब हम कपड़ा धोते हैं, not today. Today we have all the washing machine and all the latest gadgets. कपड़ा धोते हैं ना, तो कपड़ा धोने का जो क्रिया है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हम पुराने जमाने में हाथ में कपड़ा धोते थे और जब कपड़ा हम हाथ में धोते थे तो एक पत्थर होता था, द वॉशिंग स्लैब और द स्टोन, और वी यूज्ड टू वॉश द क्लॉथ्स. उसको पहले हम पानी में डुबा के फिर सोप वगैरह लगा के फिर हम लोग कपड़ा हाथ में धोते थे. और अभी भी शायद गांव के देसी लोग आज भी ऐसे ही धोते हैं. तो जब कपड़ा हम धोते हैं तो क्या होता है, कपड़ा साफ होता है, ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन सच में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कपड़ा धोने के टाइम पे कपड़ा साफ होता है, उसके साथ ही साथ वहां पर जो स्टोन पत्थर जो है, जिस पत्थर पे हम लोग कपड़ा धोते हैं वो पत्थर भी साफ होता है, और उसके साथ ही साथ जो आदमी कपड़ा धो रहा है उसके हाथ भी साफ हो जाता है. तो मैं यहाँ पर वेबथॉन में जब मैं आता हूं तो उस टाइम पे पता नहीं आप लोगों को कैसे फील होता है, तो मुझे लगता है हमेशा के लिए कि मैं अपने आप को और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी पाने के लिए मैं अपने आप को ज्यादा यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू लर्न मोर देन एवरीबडी. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील, क्योंकि हर बार जब मैं वेबथॉन में आता हूँ आई फील आई गो बैक विद लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ जोश, लॉट ऑफ लर्निंग. तो आज हरिप्रसाद का भी एक फेवरेट सब्जेक्ट है ये, तो आज इस सब्जेक्ट को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ. दैट इज कॉल्ड एज योर पर्पस इन योर लाइफ. और ये सब्जेक्ट जो है दिस इज वेरी मच कनेक्टेड टू एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज मुझे ऐसे जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं मानता हूं इस बात को कि एवरी story, every life, every person
has a story. Every person has a story, and every person's life is a story. हर आदमी का जिंदगी जो है, it's like a beautiful story. जैसे you take a book, okay? So when you take a book, okay, this is a very nice book, The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, Dr. Joseph Murphy. So when you take a book, हर किताब को जब आप हाथ में लेते हैं तो उस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आता है. You open the chapter and start reading the preface and all that, और उसके बाद you read the book. So I believe every book is very interesting to read and it's a very good companion. और जैसे हर आदमी के लाइफ जो होता है, every person's life, it is a story, a beautiful story. And the story starts when you were born. जब हम इस दुनिया में आए थे, उस दिन की अगर हम बात करें, so that is the first page. वहां से आपका स्टोरी जो है वो शुरू होता है. और there are many chapters in your life. You keep changing the pages, you keep moving. And some books are very bulky, very big. Some books are very thin. But end of the day, every book has a front page and the last page, and it has got lots of chapters. So, यहाँ पर we have 426 people, including me, and more people are joining, and बहुत सारे लोग हैं. And if you look at each one of you, your life is your story. Your story is tomorrow's history. That is why when they talk about the past events in this world, they call it as history. In general, human being, man's story, it's called his story. That's why it's called history, इतिहास, चरित्र के बारे में जब हम बात करते हैं. तो your life is also a beautiful story. Your life is also a beautiful story. और ये स्टोरी आपका जो होता है, आपके लाइफ का जो स्टोरी है, ये इस दुनिया को आप जो संदेश देना चाहते हैं, वो इस जिंदगी के अंदर है. I think it is, if I'm not wrong, it's Mahatma Gandhi, the great human being. Mahatma Gandhi ji ने कहा, your life is a message to the world. Make sure it is inspiring enough. तो हमें भी ये चीज याद रखना चाहिए कि I am also living a life which is a story. My life is like a book which is a story. और शायद अब या 10 साल के बाद या जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, people will hear about us, people will talk about us. लोग हमारे बारे में बात करेंगे, लोग हमारे बारे में याद करेंगे, लोग हमारे बारे में चिंतन करेंगे, कभी कभी हमारे बारे में चर्चा करेंगे. और उस चर्चे में, उस बात में, उस डिस्कशन में हमारे बारे में लोग क्या कहना चाहिए, वो डिसीजन हम आज ले सकते हैं, ताकि जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, people will remember us for the things what we want them to be remembered. Right? तो आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लाइफ को किस तरह के स्टोरी बनाएं, किस तरह के मैसेज हम इस दुनिया को देकर जाएं. So that is what I'm talking today about, the purpose of your life. अब देखिए, everything in this world has a purpose. Let's say I have a this sanitizer. Oh, जो भी green दिखाता हूं तो इसमें पूरा ये हो जाता है. Okay, this is a sanitizer. Okay, right? You can see my hand. Okay. So what is the purpose of this sanitizer? It's very simple. You open it, you put a drop on your hands, and then you sanitize. So that is the purpose of the sanitizer. So I have a clip with me. Okay, ये clip है. Okay, thank God it's not green. Okay, so ये जो clip जो है, this is maybe to keep the things together. अगर मेरे पास अगर कुछ papers हैं और इन papers को मैं यहाँ पर I want to keep it together. Okay, this is a clip. Okay, I can bend it like this. Okay, so clip. इस clip को जिसने बनाया, इस clip का एक purpose है. This has got a purpose. What is the purpose? It is to hold the papers together, maybe sometime, maybe some currencies together, or maybe some documents together. So that's about it. Or let's take this, this paper. Paper is, to write something on this. इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं. The pen has got a purpose to write. अच्छा. So this pen, this paper, clip, this sanitizer, and in all these things, it has got a purpose behind it.
तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? वेरी philosophical question, a very logical question, a very emotional question it may be, or very scientific question also, because अगर आपको आपकी जिंदगी का पर्पस पता चल गया तो लाइफ जीने में मजा आएगा। जैसे आज हरिप्रसाद जी ने बताया यहां पर कि प्रेम सर हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और एंटरप्रेन्योर्स को बनाने में उन्होंने उनका लाइफ डेडिकेट किया। पता नहीं मैंने कब ये हरिप्रसाद जी को बताया, लेकिन उनको मेरे बारे में पता है, तो उन्होंने जो भी कहा हमेशा वो सही होगा, because he knows me very well. We share a very brotherly, very close relationship. He is elder to me, but still we have a fantastic relationship. So उन्होंने कहा कि प्रेम sir has dedicated his life for this. That is his purpose of his life. So yes, it is a kind of partially it is a fact that I have dedicated. मैंने अपनी जिंदगी को I have decided to be in this industry and to go ahead in this industry and to do this business. To help many people to become successful, and that is a kind of a purpose in my life. Of course I have a greater part to it, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि yes, in my life I believe that direct selling is a very important part, and I have discovered my life's purpose through this. ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, what is your purpose in life? और इसका आंसर आपको शायद अभी नहीं ना मिले, no problem, लेकिन ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए. यू नीड टू हैव दिस क्वेश्चन इन योरसेल्फ, और अपने आप को ये सवाल, ये अपने आप से ये सवाल हमेशा करना चाहिए कि व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ. जैसे हम सड़क पर देखते हैं कभी कभी गाय, राइट, देयर इज अ काउ, इट इज वॉन्डरिंग, सम बफेलोज आर वॉन्डरिंग इन द रोड, सम डॉग्स आर वॉन्डरिंग इन द रोड, सम डोंकीज, गधे हम देखते हैं ना, कभी कभी गधा सड़क पर जाता है. सो द एनिमल्स, they live their life out of instinct. Instincts का मतलब, इसको पता चलता है कि ओके ये घास है तो ये मुझे खाना पड़ेगा, तो the cow eats the grass, and it is having a different life, the animals. And we as human beings, we also have a greater purpose. हमारे जिंदगी में we have very big purpose, और हमें ये जो लाइफ ये जो 50 years, 60 years, 70 years, let's say 100 years, ये जो लाइफ हमें दिया गया है, ये लाइफ जो है इसको मीनिंगफुल बनाना चाहिए. और लाइफ का मीनिंग ढूंढने से अच्छा है कि लाइफ के लिए लाइफ को हम मीनिंगफुल बना दें. जैसे इफ आई वाज बोर्न मे बी इन 19th century or in 18th century, I would have probably been, I'm thinking sometimes, I would have probably been somebody like Bhagat Singh or Subhash Chandra Bose or like Netaji, what do you call Mahatma Gandhi ji, the freedom fighters. उस जमाने की बात कर रहा हूं, right? If I was born maybe at that time, I would have been probably one of the freedom fighters, or I would have been a follower of one of the freedom fighters, because उस जमाने में that was what was needed for this country, and maybe that was my purpose of my life. Or if I was born, let's say some 500 years ago, I would have been maybe like Vasco da Gama, a traveler taking a boat and discovering the new routes. Or maybe I was born, if I was born so maybe some 1,000 years ago, I may be one of the, maybe like those days how the people were living, the Stone Age, the Middle Age, right? I would have been like that. So I am born in 1981, and I am living now in my life. I have completed last, now I am in my 40th year. So this is one thing I'm like, I was thinking last 1 month onwards, maybe life mein I have completed 40, and what is my purpose of my life and how it is going. इन चीजों के बारे में सोच रहा था. So what is your purpose in your life? Maybe you are in your 20s, you are in your 30s, or whatever age you are. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, you should think one thing. एक चीज आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि you are the hero of your story. Triveni Shetty madam is here, and in the movie or the book of Triveni Shetty, she is the main character. And बाकी सारे characters, husband, wife, father, mother, children, sister, brother, friends, everybody is the character, but that is not the main character. In Syed Mubarak Ali's life, in Hari Prasad's life, in Shahnawaz's life, you are the main character. And you are the lead role. If you see the movie Suryavamshi by Akshay Kumar, there is also Ajay Devgan, there is also Ranveer Singh.
But the main Chunky Pandey, I think not Chunky Pandey. One more actor is there. I forgot his name. One dancer, right? Okay, so the main character is Akshay Kumar in Suryavamshi movie. I was watching in Amazon some time back, 1 month back, right? So Akshay Kumar is the main character. He's the lead role also. He's the hero. So in your life, you are the hero and you have to discover what is your purpose. आपका purpose क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सड़क पर you look at outside when you go, you can see a cow, a dog, a donkey, maybe some, ducks, chicken. You may see some birds, some snakes, right? So everything, animals, they live a life as instincts. Lekin as human beings, we must understand what is our purpose in our life, in what direction we are traveling. कभी-कभी क्या होता है ना, if you're going fast also, you need to take breaks in between just to sit down and to look at your life. आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, right? Indus Viva business सभी लोग नहीं कर सकते. It's a fact. Some people come to Indus Viva business 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. They are still star 250, star 500. They are just in an ordinary rank and they're just spending their time pass. I mean, I'm not understanding कि वो लोग उनके टाइम इधर वेस्ट क्यों करते हैं. मैं हमेशा वैसे लोगों को जब मिलता हूं तो I tell them, please don't do Indus Viva business, sir. Please, you spend your time with your family. You please do some other job. क्योंकि Indus Viva business करने का भी एक पर्पस होता है. Indus Viva business कैसे लोगों को मतलब अच्छा लगता है, कैसे लोगों को ये सूटेबल है, किस तरह के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं. If you ask me, it is not for everybody. Because this journey is not easy, Baba. It is not easy. It is not for everybody. It is not especially for the lazy. It is for the people who are crazy. It is for the people who are crazy. And ordinary लोग जैसे सोचते हैं, आम लोग जैसे सोचते हैं, नॉर्मल, मीडियोकर, मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी, सिंपल जिंदगी जिनको चाहिए, उनके लिए मार्केट में बहुत सारा ऑप्शंस है. They can go and join a job, they can do some other small business और कुछ भी कर सकते हैं. There are many professions. मैं किसी प्रोफेशन के बारे में मतलब नीचे नहीं दिखा रहा हूं, किसी प्रोफेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूं. Every profession is important in this life. If like somebody said, I think it's Nelson Mandela, if I'm not wrong. What was said is, even if you are a sweeper, अगर हम सड़क पर झाड़ू मारने वाले हैं, जो सड़क को साफ करते हैं, even if you are a sweeper, do the sweeping in such a beautiful way. ऐसे आपको sweeping करना चाहिए. I think Martin Luther King or Nelson Mandela. I'm not clear. I think should be Martin Luther King. My brain says that. So even if you are a sweeper, आपको ऐसे मतलब झाड़ू मारना चाहिए, आपको ऐसे साफ करना चाहिए अपने झाड़ू को लेके कि सारे के सारे दुनिया के लोग आपको देखकर, आपकी जो साफ करने का जो तरीका है और आप जैसे सड़क को साफ करते हैं, उसे देखकर लोगों को कहना चाहिए कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्वीपर ये रहा, देखिए मेरे सड़क पे आके देखिए, यहां पर रहता है इस दुनिया की बेस्ट स्वीपर, इतना बढ़िया वो स्वीपिंग करता है. क्योंकि एवरी प्रोफेशन इज इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा, एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन पर्पस इन देयर लाइफ. सो मे बी whatever purpose God has for us, whatever purpose we have realized for ourselves, मैं किसी प्रोफेशन को मैं ऊपर या नीचे नहीं कहता हूं, बट आई फील किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इधर दिल में लगना चाहिए कि मैं इस दुनिया की बेस्ट प्रोफेशन में हूं. और ये एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, बार बार इस धड़कन के अंदर, इस दिल के अंदर लगना चाहिए कि आई एम इन द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशन. दोस्तों, एक छोटा सा पेंटिंग करने के लिए हमको इतना मतलब मुश्किल होता है कभी कभी. वी कांट इवन फोकस ऑन दैट. If you look at the paintings of Picasso, what a kind of painting he has done. If you go to Europe, if you go to Italy, and if you see the paintings of Picasso, what lovely paintings he has done. और कभी कभी लगता है कि not Picasso, I'm sorry, Da Vinci, the kind of paintings he has done.
एक एक पेंटिंग जब वो टूरिस्ट गाइड हमें दिखा रहा था, इट वॉज लाइक सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना डीपली कोई इंसान कैसे इस पेंटिंग के अंदर जा सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? एंड उन्होंने जो डेडिकेशन उसके अंदर दिया, फाइनली लगा कि गॉड हैज सेंट दिस पर्सन, ऊपर वाले ने इस आदमी को ये पेंटिंग बनाने के लिए बनाया। जब आप अमिताभ बच्चन के एक्टिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि दिस पर्सन इज बॉर्न फॉर एक्टिंग। और पीले, द फुटबॉल लेजेंड, वो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जब उसके सामने एक फुटबॉल की तरह एक बॉल रहता है, तो उसको किक करने का जो फीलिंग है वो बेसिकली हर इंसान के अंदर है। मैन हैज गॉट द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ किकिंग अ फुटबॉल। सी, दैट इज हाउ Pele is talking about football because he lived for football. He's a legend in football. So I believe being in direct selling industry, being in industry, being in the wellness industry, community commerce, हमेशा हमें ये लगना चाहिए कि I am in the world's best profession. Passion in any profession, किसी क्षेत्र के अंदर अगर हम बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र के बारे में हमें रेस्पेक्ट आना चाहिए। रेस्पेक्ट कब आता है? जब आपको अंदर ही अंदर गर्व महसूस होता है कि मैं जो कर रहा हूं इस दुनिया की बेस्ट प्रोफेशन के अंदर हूं, तब ऑटोमेटिकली यू विल फील द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट प्रोफेशन। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट का बैट लेके नेट प्रैक्टिस करने उतरता हूं फील्ड में, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, राइट? अगर सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि क्रिकेट इज माय टेंपल, पब्लिक कहते हैं ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। सी द कनेक्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। सो दोस्तों, आर यू फीलिंग द सेम पैशन इन योर लाइफ एंड आर यू फीलिंग दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज योर पर्पस? आर यू इन द राइट प्रोफेशन? ये सवाल अपने आप से पूछिए, बिकॉज दिस बिजनेस इज फॉर पीपल हु आर क्रेजी, नॉट फॉर पीपल हु आर लेजी। फुर्सत नहीं रहना चाहिए आपको 2 मिनट भी अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर काम करने के लिए इतना ज्यादा काम है और हमारे पास 24 आवर्स समटाइम्स इज नॉट इनफ। मैं अपना व्हाट्सएप देख रहा हूं, मैं वो मैसेज रिप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूं बिकॉज सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी पीपल, सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी कम्युनिकेशंस आर हैपनिंग। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट अकम्प्लिशिंग थिंग्स। मैं कहता हूं कि जितना मैं अकम्प्लिश कर पा रहा हूं उससे कहीं गुना ज्यादा है। वन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर और वन रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर इज नॉट इनफ फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स एटलीस्ट आई वुड से 1000 ब्लैक डायमंड्स, 10,000 diamonds, because India is huge with 1.3 billion plus population we have. एंड मार्केट में करने के लिए काम इतना ज्यादा है, इतने सारे लोग हैं, इतना मतलब एक जिंदगी काफी नहीं है हमें ये बिजनेस करने के लिए। हमारे पास जो टाइम है वो काफी नहीं है, बिकॉज लाइफ इज सो ह्यूज। एंड इस दुनिया में अगर आप घूमने की अगर बात करें तो यू हैव सो मेनी प्लेसेस की रोज अगर एक एक जगह पे जाएंगे तो भी सारा जिंदगी जो है वो कम पड़ जाएगा आपको दुनिया देखने के लिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज सो बिग एंड सो ब्यूटिफुल एंड सो ह्यूज। So, what is your purpose in your life? The first question. क्योंकि जब तक वो पर्पस क्लियर नहीं होता है, आज सुबह आई वॉज टॉकिंग इन प्रोजेक्ट 1 के, उसके अंदर मैं वही कह रहा था कि दुनिया में लाइफ, हमारा जो लाइफ जो है इट्स लाइक कुकिंग, कुछ पक रहा है। जैसे बर्तन रख दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया और उस पानी के अंदर आलू अगर हम डालते हैं तो इट इज कुकिंग। So in our life, how many purpose we have, what all purpose we have, that is what is gets cooked. तो हमारा हर दिन का उठना, बैठना, बात करना, व्हाट्सएप पे किसी से चैट करना, किसी को मैसेज सेंड करना, कोई काम करना, अपना टाइम देना, अपना एफर्ट, अपना एनर्जी, ये सब कुछ किसी चीज के अंदर अगर हम दे रहे हैं, वो ऐसी चीज होना चाहिए जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको बहुत बड़ा नाम कमा के दे सके, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने में मदद करे और बहुत सारे लोगों को मदद करने में आपको एक मौका दे, और बहुत कुछ अपने लाइफ में जो आप सपने देख रहे हैं उन सपनों को, मतलब उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में वो मदद करे। तो मैं आपको आज यही बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इंडस्ट्री ही करना चाहिए, लेकिन मैं आज आपको ये एज ए गुड फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको कुछ ऐसे करना चाहिए जो आपको एक्चुअली करना चाहिए।
जैसे आपको कुछ ऐसे करना चाहिए जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को आगे जाकर वो बेहतर बनाए। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं दिल में कि यस दैट इज इंडस विवा, तो मैं आपको बता रहा हूं, फॉरगेट एवरीथिंग, बाकी सारी चीजों को आप भूल जाइए। जैसे वो कहते हैं ना, लाइफ में सही रास्ता चुनना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, पर्पस ऑफ योर लाइफ, अगर आपको लगता है कि योर कॉलिंग इज देयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, योर फ्यूचर इज देयर इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर डिजाइन्ड फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत बढ़िया। फर्स्ट थिंग, सो फर्स्ट थिंग इज चूज द राइट पाथ। सही दरवाजा जो है उससे आप चुनिए, और उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है, ये शायद एक बहुत बड़ा कमरा है, और आपको मैं बता रहा हूं किस कमरे के अंदर जाना, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। किस कमरे के अंदर जाना, किस दरवाजे के अंदर हमें प्रवेश करना चाहिए, ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, सेकंड पार्ट बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, और वो सेकंड पार्ट के बारे में आज मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं। पहली चीज, क्या मेरा पर्पस इंडस विवा करने का है, तो डिसीजन इज पक्का, फंटास्टिक, एंट्री करो, स्टेप इन, प्रवेश करो अंदर, और एक बार डिसीजन ले लिया कि मैं इस दरवाजे के अंदर जा रहा हूं, कॉल्ड इंडस विवा, कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, वेलनेस, उसके अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें और एक चीज और एक काम भी हमें करना चाहिए, जो हमारा सबसे बड़ा वीकनेस कभी कभी साबित हो सकता है, कि वो ये है कि उस कमरे के अंदर जाने के बाद बाकी सारे दरवाजे जो हैं उसे बंद करो। सबसे पहले उस कमरे के अंदर जाने के बाद, उस ऑडिटोरियम के अंदर जाने के बाद बाकी सारे दरवाजे जो हैं उसे बंद करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यू नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। एक फील्ड के अंदर अगर विजेता आप बनना चाहते हैं, उसके अंदर सक्सेस आप पाना चाहते हैं, तो एनर्जी को उस चीज पर, जैसे मैंने वेबथॉन का वन ऑफ द सेशन में बात किया था, पावर ऑफ फोकस। क्यों हमें उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद, मतलब उस कमरे के अंदर जाने के बाद, उस दरवाजे के थ्रू प्रवेश करने के बाद हमें बाकी सारे दरवाजा जो है उसे बंद करना चाहिए, बिकॉज दोज आर ऑल द एनर्जी ड्रेनर्स इन आवर लाइफ। बाकी सारे दरवाजे, बाकी सारे खिड़कियों को हमें बंद करना चाहिए, ताकि हम उस चीज पर फोकस करें, उन चीजों पर हम विचार करें, उन चीजों पर हम काम करें जिस पे हमें काम करना चाहिए। जैसे अभी मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूं, दिस इज माय रूम, एंड आई मेक श्योर दैट इस दरवाजे के, मतलब इस कमरे के अंदर आने के बाद आई लॉक द डोर थ्रू विच आई कम इनसाइड, ताकि बाकी लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और मुझे उधर की आवाज सुनाई ना दे, और मैं फोकस्ड रहूं कि मैं यहां पर जो काम कर रहा हूं। जैसे वो पेंटर की बात कर रहा था, राइट, उस आर्किटेक्चर को बनाने के वक्त, ताजमहल को बनाने के वक्त उन्होंने जो फोकस किया उस पर, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट पे फोकस किया, शाहरुख खान ने एक्टिंग पे फोकस किया, ए.आर. रहमान ने म्यूजिक पे फोकस किया, मैं अपने डेस्क पे आने के बाद मैं यहां पर इस चीज पर फोकस करूं, इसीलिए मैं उस दरवाजे को बंद करता हूं, खिड़की को बंद करता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वॉट आई एम डूइंग। तो आज मैं आपको फिर से वो याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले चुनो कि किस दरवाजे में मुझे प्रवेश करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारे डोर्स जो होता है ना दोस्तों, उससे बंद कर दो। तो वो एनर्जी ड्रेनर्स जो है आपके लाइफ में, उससे पहचानना आज आपका एक असाइनमेंट होगा। मेरी तरफ से मैं वो असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि आइडेंटिफाई व्हाट आर द थिंग्स विच इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। कहां से आपका एनर्जी लीक हो रहा है, क्योंकि उस एनर्जी को लीक होने से बचाना चाहिए, मतलब अपने एनर्जी को लीक होने नहीं देना चाहिए, उसको सील करना चाहिए, ताकि उस एनर्जी को हम किसी एक चीज पर इन्वेस्ट करें, ताकि उस फील्ड में सबसे ज्यादा हमें मिले। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? Every action has got equal and opposite reaction. In English we say what you sow, so you reap.
तो इंडस विवा के अंदर हमें अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना समय, अपना अपना पूरा सब कुछ यहां पर समर्पण क्यों करना चाहिए? बिकॉज when you focus everything on one thing, and then what you give is what you get. Every action has got equal and opposite reaction. तो अगर आप अपना पूरा हटा के यहां पर अपना एनर्जी, अपना फोकस, अपना समय और अपना टाइम यहां पर अगर आप दे रहे हैं, तो यहां से सब कुछ, वो सारी चीजें आप रिसीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। जो हमेशा मैं अपने ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि व्हाई आई एम गिविंग माई एवरीथिंग टू माई बिजनेस, बिकॉज माई बिजनेस इज गिविंग मी एवरीथिंग. So I'm so damn committed to my business. I'm so damn serious about my business because I'm very serious about my life. I'm very serious about my family. I'm serious about my happiness of my family. और वो मेरा पर्पस है as a father, as a husband, as a son. तो मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत सीरियस हूं, इसीलिए मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हूं, और जहां पर मैं अपना टाइम देना चाहता हूं उसके बारे में भी मैं सीरियस हूं. वरना क्या होता है, अगर मैं बात करूं कुछ लोगों की जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसका कारण यही है, वो कुछ ढीला होता है, उनकी कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है, उनकी फोकस थोड़ा ढीला होता है, उनकी कमिटमेंट भी थोड़ा ढीला होता है. लेकिन जो चैंपियंस हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं, उनकी बातों में दम रहता है, उनके काम में, काम करने के तरीका जो होता है, उनके कमिटमेंट में वो 100% होता है. सो दोस्तों, वाटर बॉइल्स, पानी जो होता है ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो 100 डिग्री में बॉयल होना शुरू होता है. वरना वो गर्म रहता है, पानी गर्म होता है, ठीक है, बट व्हेन द हीट इज, द हीट इज 100 डिग्री, that is called as the boiling point of water. और आपके लाइफ में आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं, जिस फोकस, जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस के अंदर अगर आप जो फोकस कर रहे हैं, अगर वो भी अगर बॉयल होना चाहिए, if your business has to start boiling, if your efforts has to start giving you fruits, वो 99% में नहीं होता है दोस्तों, वो 100% से ही होता है. अब ये बाकी सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो कामयाब बनना चाहते हैं, और उन लोगों में जिन्होंने सक्सेस को पाया, जो कामयाब हो चुके हैं, उनमें अगर आप फर्क ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा ये 1% का फर्क, सिर्फ 1% का फर्क. 1% मेक्स द 100% डिफरेंस. तो हमें काम करना चाहिए, नॉट 99% माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी मोर देन 100%. 100% आपका जब आप देंगे, वो अभिलाष जी, मेरे जो मेंटर, जो हमारे सीईओ एंड मेरे चीफ मेंटर हैं, अभिलाष जी हमेशा कहते थे कि प्रेम, यू हैव अ पावर इन यू, तुम्हारे अंदर पावर है, लेकिन तुमसे ज्यादा पावरफुल ऊपर वाला है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी पावर में आप मानते हैं. एक चीज तो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए ना. यू हैव टू बिलीव इन अ सुपर पावर. इफ यू डोंट बिलीव दैट देयर इज समथिंग हायर देन यू, मोर पावरफुल देन यू, तो जिंदगी जीने में मतलब कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ बेकार होगा. यू मस्ट बिलीव दैट देयर इज समथिंग विच इज हायर देन यू, विच इज ग्रेटर देन यू. आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा, they say God, they say this universal power, super power, whatever, जो भी, जिस रिलीजन में भी आप बिलीव करते हैं. वन वे आई रियली लव, द गुड थिंग अबाउट रिलीजन इज, रिलीजन आदमी को ना एक फोकस देता है, एक चीज पर फोकस करने के लिए, राइट? इफ यू आर अ हिंदू, यू वर्शिप इन वन पर्टिकुलर गॉड, एंड हिंदुइज्म आल्सो देयर आर मेनी डिफरेंट गॉड्स, राइट? यू डोंट हैव टू गो टू ऑल द गॉड्स कि इस मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर. ऑफ कोर्स गोइंग टू मंदिर इज नॉट बैड, बट यू शुड हैव वन इष्ट देवता, राइट, टू फोकस ऑन. Right? If you're a Christian, you pray to Jesus. If you're a Muslim, you pray to Allah. Whatever it is. लेकिन वो भी हमें बिलीफ के साथ करना चाहिए, एंड उस सुपर पावर के ऊपर बिलीफ होना चाहिए. Now coming back to what my mentor Abhilash ji said me is, there is a super power, there is God, and उसको अभिलाष जी कहते हैं कि टर्बो पावर.
ही सेज दैट इज टर्बो पावर, और वो टर्बो इंजन है, ठीक है। मेरा इंजन जो है वो नॉर्मल है इंजन, और ऊपर वाले का जो इंजन है वो टर्बो इंजन है। अभिलाष जी कहते थे टर्बो इंजन कब ऑन होगा, जब तुम्हारा इंजन एग्जॉस्ट होगा तब टर्बो इंजन ऑन होगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाला काम कब शुरू करेगा, जब हम अपना पूरा 100% देकर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब वो टर्बो पावर शुरू होता है अपनी लाइफ में। वो कहते हैं ना, महाभारत की अगर हम बात करें तो सब लोग चाहते हैं कि मुझे कृष्ण के जैसे सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन के जैसे एक वीर योद्धा बन जाऊंगा। अरे दोस्तों, सच तो ये है, पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, तब जाके कृष्ण अपने सारथी बन के अपनी लाइफ में आएगा। तो हमें अपना 100% देना चाहिए, जैसे मेरे मेंटर ने कहा, तब जाके वो ऊपर वाला टर्बो पावर, टर्बो इंजन जो है वो ऑन होगा। राइट? सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इन सवालों से, मतलब इन सवालों को छोड़ के जाना चाहता हूं आपको अपने आप से पूछने के लिए, आर यू डूइंग द राइट थिंग? अपनी लाइफ में आपका पर्पस क्या है? आर यू इन द राइट बिजनेस? आर यू इन द राइट इंडस्ट्री? कभी कभी मेरे बहुत करीब के दोस्त लोग इंडस्ट्री नहीं करते हैं, एंड आई एम ओके विद दैट। अगर मैं सच कहूं तो माई ओन ब्रदर इज नॉट डूइंग इंडस्ट्री बिजनेस, एंड आई एम ओके विद दैट, बिकॉज हिज पर्पस इन लाइफ इज डिफरेंट। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को अप्रोच किया था बिजनेस के लिए, उसने इंडस्ट्री को, ही सेड नो, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे लगा माई पर्पस इज इंडस्ट्री, और मुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए कि दुनिया के सारे लोग इंडस्ट्री में आ जाएंगे। नो, इट्स नॉट करेक्ट। हाँ, वो सारे लोग, जो लोग इंडस्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जीत हासिल करना चाहते हैं, वैसे लोग मेरे साथ आ जाए, वो अच्छी सोच है। लेकिन दुनिया के सारे लोग मेरे साथ आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Right? So don't expect that. So your purpose in life should be clear. तो आज का सवाल अपने आप से, am I in the right industry? First thing. If I'm in the right industry, am I doing the right thing? Right? वो कहते हैं इंग्लिश में, even if you are on the right track, if you don't move, you will get run over or you maybe get hit. इसका मतलब क्या होता है? अगर आप सही ट्रैक पर हैं, ट्रैक पे तो बहुत सारी गाड़ियां आती रहती है ना, अगर आप सही ट्रैक पर हैं, लेकिन अगर आप हिल नहीं रहे हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यू विल गेट रन ओवर। तो कभी कभी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पर्पस, एंड इफ यू फील दैट इंडस्ट्री इज योर बिजनेस, इट इज योर पर्पस, इट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग यू वांट, एंड इंडस्ट्री के हिसाब से, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए तैयार हैं, then industry is good. And let me tell you, my dear friends, अगर आप इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ होना चाहिए। If you are not growing, my dear friends, please understand what is stopping you. And whatever is stopping you, वो माइंड ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंडस्ट्री के साथ लास्ट ईयर ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स क्यों हुआ? Why इंडस्ट्री के बारे में ऐसे पेपर में आर्टिकल आया था, या इज इट द राइट कंपनी? तो अगर आपके माइंड में कुछ माइंड ब्लॉक्स है, उन माइंड ब्लॉक्स को जल्दी से डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। सीक द राइट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आपके मन में जो भी डाउट्स है, वो सारी चीजें, उन डाउट्स को क्लियर कर लो, क्लैरिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय योर माइंड ब्लॉक्स एंड गेट अहेड, the mind blocks will destroy you and push you back in your life. या तो बिजनेस को समझो 100% एंड इस बिजनेस के अंदर अपना 100% जान डाल के खेलो, वरना कहीं और जाकर अपना जान डालकर वहां पर खेलो जहां पर आप सफल हो सकते हो। ये दोनों चीजों से मैं सहमत, मैं इन चीजों से मैं सहमत, मतलब इस बात से मैं सहमत हूं। एक तो either select Indus Viva and do it with 100%, or decide कि Indus Viva is not my cup of tea and अपना 100% जो है वो कहीं और दें, ताकि वहां से हम कुछ कमा सके, कुछ मतलब कामयाब बन सके। राइट? इन दोनों को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ लोग रहते हैं। ये कहते हैं हिंदी में, ना घर का
ना घाट का। ऐसे अवस्था में अगर कोई है तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, जल्दी से अपनी मेंटर के साथ बैठो। प्लीज सिट विथ योर मेंटर एंड गेट दिस डैम थिंग क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि दोस्तों, क्लैरिटी इज पावर एंड पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल क्लैरिटी इन देयर माइंड। अगर यहां पर क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ भी कर लो यार, कुछ नहीं हिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। तो उन लोगों से, स्पेशली जो बीच के लोग हैं, जो न घर का ना घाट का कैटेगरी के लोग हैं, बुरा मत मानना, मुझे सच कहना चाहिए। क्योंकि जिस मंच पर, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग मुझे सुनने आते हैं और मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं। तो यहां पर बैठ के मैं मीठी मीठी बातें बोलकर कहने, मतलब जाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, और कभी कभी सच कड़वा भी होता है। एंड एवरी मेडिसिन इज नॉट स्वीट, बट मेडिसिन इज गुड फॉर हेल्थ। तो मुझे यहां पर ये बताना चाहिए, इफ यू आर डैम नॉट क्लियर इन योर माइंड कि इंडस विवा इज द राइट कंपनी, इंडस विवा इज द राइट पाथ फॉर मी, प्लीज फॉर गॉड सेक किसी और कोर्स में ज्वाइन कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन लाइफ को बढ़िया बनाओ। क्योंकि दोस्तों, as I told you in the beginning of today's webathon, every story is beautiful and your life is a story and you are the hero of your life. और मैं चाहता हूं कि you should take the lead role, lead character in your story, not a side role. वो होता है ना, कभी कभी डांस करते हैं कोई हीरो के साथ, साइड में जो रहते हैं उनका चेहरा जो है उसको ब्लर कर देते हैं जानबूझ के, ताकि हीरो या हीरोइन बहुत सुंदर दिखे। परम 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 सुंदरी सॉन्ग में कृति सोनन को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, लाइट उनके चेहरे पे ज्यादा दिखाया जाता है, ताकि शी बिकम्स मोर हाईलाइटेड। बाकी लेडीज, सुंदर लड़कियां जो नाच रही हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं दिया जाता है, बिकॉज देन ओनली कृति सोनन विल लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल परम सुंदरी सॉन्ग में। अब परम सुंदरी या परम सुंदरा, दोनों से मैं यही कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ का जो फोकस है अपने चेहरे पे ज्यादा लाने की कोशिश करिए, और अपनी लाइफ के हीरो या हीरोइन या व्हाटएवर द मेन कैरेक्टर आप खुद बनो, और योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। आप इंडस विवा में रहें या कहीं और जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन आपकी लाइफ पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और सबसे ज्यादा दोस्तों, मजेदार जिंदगी और कलरफुल लाइफ आपका होना चाहिए। तो आज जो मैंने आपको बताया यहां पर, वो पर्पस को लेके, मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट को सुनने के बाद शायद आपके लाइफ में थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। और जैसे मैं हमेशा करते रहता हूं, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से पहले अपने नकाब सही तरीके से पहने, ये इंडिगो का अनाउंसमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं वेबाथन सेशन में आने से पहले अपना जो चश्मा जो होता है, इसको इस सॉफ्ट क्लॉथ में मैं क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि मेरे क्लैरिटी जब मेरे लाइफ में होता है तो तब जाके मैं दूसरों को क्लैरिटी दे सकता हूं। क्योंकि अगर ये फॉगी है, इफ माई गॉगल्स आर फॉगी, आई विल नॉट बी एबल टू गिव क्लैरिटी टू अदर्स। तो जैसे मैं हमेशा अपने लाइफ में अपना स्पेक्टेकल जो होता है उसको हमेशा क्लियर, जॉन सर यहाँ पर हाथ दे रहे हैं क्योंकि वो भी चश्मा पहनते हैं, राइट। तो चश्मा पहनने वालों को मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर वेणुगोपाल पुजारी हैं, तो उनको पता चल गया। लोकेश इज वेयरिंग स्पेक्टेकल, बीमल सेन गुवाहाटी से, राइट, और हमारे जय कुमार सर भी हैं। जो चश्मा जो होता है उसको हमेशा क्लियर रखना चाहिए। तो मुझे लगता है आज मेरा जो सेशन जो है, इस कपड़े के जैसे अपनी लाइफ की जो गॉगल्स जो है उसको क्लैरिटी देने में आज का सेशन आपको मदद किया। इसी उम्मीद के साथ आज की इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहता हूं यहीं पर, लेकिन आपको क्लैरिटी दिया आज मैंने इस सेशन के जरिए, इस सेटिस्फेक्शन के साथ मैं आज का सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। फिर से मिलेंगे अगले वेबाथन में, नेक्स्ट वेबाथन में, और एक पावरफुल सब्जेक्ट को लेकर, ताकि हम अपनी लाइफ में जितना भी आगे बढ़े उस जर्नी में इस वेबाथन को लेकर लोग उनकी स्पीड को बढ़ाएं, उनकी क्लैरिटी को बढ़ाएं, बिकॉज आई बिलीव people with clarity are the people with power. So let's build our 2022 in a powerful way, waiting for an amazing year, my dear friends. I'm all excited about this year 2022. I'm going to meet our chairman and our CEO very shortly, and to have a discussion about, making a very big change in the direct selling industry through Indus Viva. So let's all gear up, let's all wear our seat belts and get ready for an amazing dynamic journey called
life. This is your friend, your partner, आपके हमसफर और आपके दोस्त प्रेम कुमार, रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, signing off. Have a fantastic day, my dear friends. Love you all. Lots of love wherever you are. Stay safe. Take care of yourself. Khuda Hafiz. Thank you very much. Superb. Thank you so much, Prem sir. It was such a wonderful session. दोस्तों, अगर आपको भी वैसा लगता है, let us give a big round of physical applause. Superb. अभी जब मैंने ये वेबिथॉन का शुरुआत में इनको सर को बुलाने के पहले जब मैंने कुछ 5 मिनट बात किया, अभी समझ में आ गया हरिप्रसाद कुछ बकवास तो नहीं किया, सच में सच ही बोला यार. फील हो रहा है. अभी आप बताइए मैं कितना लकी हूं जिस इंसान के साथ मुझे 3 साल फील्ड पे, जैसे आपका स्पॉन्सर आपका अपलाइन के साथ आप फील्ड पे जाते हो 1-to-1 प्रेजेंटेशन में, वैसे मुझे 3 साल मिला. वो 3 साल 1-to-1 लेवल पे. और मेरा अंडरगॉन सो मेनी मल्टी इंटरनेशनल ट्रेनर्स, बड़े नामचीज ट्रेनर्स का ट्रेनिंग अटेंड किया हूं. बट मैं सच में बोलता हूं दोस्तों, nobody is like Prem sir. Nobody can come near to Prem sir. You know why? वो बुक पढ़ के इधर आके उसका स्टाइल नहीं दिखा रहा है. He walks the talk. Whatever he preaches, he practices. आज उन्होंने जो भी बात बोला, दिखने में एकदम सॉफ्ट है, एकदम सुंदर भी है, एकदम प्यारा दिखता है, मगर अंदर से पत्थर है, पत्थर. He is very strong. Nothing can break him. अरे 8 महीने उधर ब्रेक नहीं हो पाएगा तो आने वाला दिन में क्या हो गया? लोग 8 मिनट में ब्रेक हो जाते हैं. इस इंसान को दुनिया का सबसे बड़े रावण ने अटैक किया था, वो भी 8 महीना, कुछ फर्क नहीं पड़ा. जाने के टाइम कितना एक्साइटेड था ना, बाहर आने के बाद उतना ही एक्साइटेड है. वो जो बोलता है ना, एक्चुअली बहुत सारा टाइम पे हमें क्या लगता है, लोग क्या सोचेंगे, हम लोगों के बारे में सोचते हैं. इवन दो अपना स्टोरी में हम हीरो है, मगर साइड रोल करने वाला हीरोइज्म दिखाता है, हम बाजू में निकल जाते. हम सोचते हैं वो क्या सोचेगा. प्रेम सर ने मुझे एक चीज स्ट्रिक्टली बताया, हरिप्रसाद जी, अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है, पहले मैं बोलता था नहीं सर, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, मेरा बहन है, उनको अच्छा करना है. उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया, हरिप्रसाद अगर आप दिल से आप अच्छे हो, जिंदगी में दुनिया में अगर आपका जीने का टाइम या जिंदगी छोड़ के जाने के पहले अगर दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका अचीवमेंट होना चाहिए. आप सीखो, आप एफर्ट डालो, आपका एक व्यक्तित्व, आपका एक एग्जिस्टेंस दिखाओ, आप बड़ा बनो. उसके बाद यू ग्रो लाइक ए बैनियन ट्री. उसके बाद बर्ड्स को आप आश्रय दो. दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ. मगर ये प्रोसेस में बहुत बार अपना लोगों को आपको ना बोलना पड़ेगा. प्लीज लर्न टू से नो gracefully. Without hurting others, you have to say no to the thing for which you have to say no. Where I was very weak on that. सर के साथ रह के जिस दिन में वो सीख लिया, मेरा पहला सक्सेस स्टार्ट हो गया. सर जो बोलते हैं ना, हर सेशन में जब भी सर आके ईच वर्ड मुझे एकदम क्लियरली समझ में क्यों आता है, he has lived that words. वो जो बात करते हैं वो प्रैक्टिस करता है. ऐसा नहीं है कि आप लोग सुबह जाके वेबिथॉन में आओ, मैं 10 बजे तक सो जाऊंगा. अभी 1K प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 10 मिनट का गैप नहीं, फटाफट ही इज बैक. एंड इफ यू सी शेड्यूल, आज रात 11 बजे तक उसका पेपर रेडी है. एवरी मिनट ही डजंट स्पेंड इवन 1 मिनट. ही इज वेरी कंजूस, एकदम कंजूस आदमी. 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता अनवांटेड लोगों के साथ ना. टाइम पास कर लोग, इतना भी उसका क्लोज फ्रेंड रहने दो. हरिप्रसाद जी आने वाला 5 साल मुझे बहुत काम है, उसके बाद देख लेंगे. ही डजंट वेस्ट इवन सिंगल मिनट. और ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्शन रखता है
जिसका उसका who deserve it. Unwanted, no. That's why he's Prem sir. And जैसे उन्होंने बताया पर्पस, हम सब लोगों को पर्पस मालूम हो गया. अगर पर्पस नहीं है तो अभी तो क्लैरिटी मिला रहेगा. And we all know we are in the best industry in the world. Community commerce, network marketing is the most beautiful, most powerful industry. We are lucky. In network marketing, we are in the best of the company in the world. जो 8 साल के अंदर 80 साल में जो मल्टीनेशनल कंपनी ने कुछ नहीं कर पाया, 8 साल के अंदर हम ऑलरेडी अचीवमेंट करके छोड़ा है.